रंग चढ़े खुद का ही खुद पे बच्चों को तू ऐसे बढ़ा। बचपन मना रे यारा बचपन मना। रोशन हो ये नन्हे दिए इन्हें तू रोज सजा। बचपन मना रे यारा बचपन मना। My name is Yuvan. My name is Viraj. I'm in class 1. My name is Noor. Meera. My name's Tara. I like everything like stuffies and cats and dogs and puppies the most. But kittens are my type and my cat peed on me 2 times. My name is Arjun and my grade is 3. My name is Kiaya. My name is Yuvan. My name is Veer. Who's your best friend in school? Kian. Avian. My best friend is Kudrat and Kismat. Ira and Kian Gupta. Why they are your best friends? Ira, I found her, so we said, can we be friends? Because I had no friends that time. Naina or Vivan. Because they're my level. My best friend is Kudrat. Veer and Rudra. And what else do you do in school? I like coloring. We play, we talk like football players or Pelado. What do you guys do when you guys meet each other? What do you play? What do you guys do? We play Avengers, Sonic. We play different games, ice and water, floor is lava. Sometimes I like to play like sword fighting games, or usually I play with my animals. I play sometimes on my iPad and sometimes I play in real. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sometimes we play tag and sometimes we build a sandcastle in the sand pit. One is the Speedy. He has to run away from the hunter. Also color tag. When we hang out, one day we exploded Coke. We took Mentos, Okay. Coke, exploded it, so much came out. And one day we shaked a Fanta bottle also, it exploded. I usually play ice and water, Mrs. Fox and color tag. Yellow. Just run and tag yellow. Okay, Go. I already know it's yellow. What makes you the happiest when you are playing? It's because I like playing with teamwork. What kind of teamwork? Like, if I need help, I can call my friends. Because Sonic is really speed and I like really speed and my favorite color is blue and peach. What do you watch on TV? Patti. Yeah. I watch Hot Wheels and my brother watch Jurassic World 2. What do you like, Peppa or George? Or Mummy Pig or Daddy Pig? Patti Pig. No. Come on. See, Dada and Noor. I usually like to watch my iPad. What do you watch on your iPad? I play a few games like Roblox and a game called Dress to Impress. And I play sometimes Blockcraft. So I play Geometry Dash where you have to dodge all these spikes. And I play Tetris. I don't have a phone. I play on my father's phone Roblox. नमस्ते और स्वागत है आप सभी का बचपन बनाओ के इस सफ़र में। ये एनडीटीवी और एक स्टेप फाउंडेशन की एक साझा पहल है जो सेलिब्रेट कर रही है बचपन के जादू को। आपने अभी कुछ बच्चों की बातचीत को देखा जहां उन्होंने खेल के अपने अनुभव हमें बताए। पूरे शो के दौरान हम आपको बच्चों की नज़र से खेल की इस अनोखी दुनिया की सैर कराएंगे। आज हम खास तौर पर
बर्थ से लेकर 8 साल तक उन पहले 3000 दिनों की अहमियत पर बात करेंगे जो बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। खेल इस समय में उनके मानसिक और शारीरिक विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। हम आपको बचपन बनाओ मूवमेंट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए स्क्रीन टाइम कम करने और बच्चों को खेलने का ज़्यादा मौका देने की शपथ लें। इससे बच्चे होंगे खुशहाल और सेहतमंद। इस शपथ के साथ आप उन माता पिता और परिवारों के समुदाय का हिस्सा बनेंगे जो अपने बच्चों के जीवन में खेल को प्राथमिकता देते हैं। आइए खेल को बढ़ावा दें और बचपन का असली आनंद लौटाएं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर अमित सेन, सीनियर चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट, वो डायरेक्टर हैं चिल्ड्रंस फर्स्ट के। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरप्रीत सिंह ग्रोवर, क्यूरियस पेरेंट हैं, ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं जो पेरेंटिंग और एजुकेशन में रिसर्च करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी और शट क्लिनिक के कोऑर्डिनेटर हैं निमहांस बेंगलुरु से। और साथ ही स्टूडियो में है दीपाली सोम जो एक कंटेंट क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस ज़रूरी बातचीत में आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं खेल के विज्ञान को। खेल सिर्फ एक मस्ती नहीं है बल्कि ये दिमाग को विकसित करने और भविष्य की सफलता की नींव रखने का एक ज़रिया है। आइए नज़र डालते हैं खेल और दिमाग के जुड़ाव पर। खेल दिमाग को कई तरह से सक्रिय करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फैसले लेने और प्लानिंग करने में मदद करता है। सेरिबेलम मांसपेशियों को सक्रिय करता है और अमिगडाला जो है वो बच्चे की भावनाओं को काबू में रखता है। वहीं हिप्पोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन में मदद करता है। डॉक्टर सेन, मेरा पहला सवाल आपसे है, खेल का भी एक विज्ञान है, हमने देखा एक साइंस है। एक बॉल फेंकने से भी बच्चों के दिमाग में कुछ चलता है, कुछ चेंज होता है। क्या आप हमें इस साइंस के बारे में बता सकते हैं? खेल क्या स्टिमुलेट कर रहा है? जी, जैसे आपने कहा कि ब्रेन के अलग अलग हिस्से होते हैं और खेल जो है करीब करीब हर एक हिस्से को स्टिमुलेट करता है। जैसे सोचिए एक बच्चा अगर भाग रहा है, दौड़ रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है तो सेरेबेलम और उसके साथ जुड़े हुए जो हिस्से हैं ब्रेन्स के उसको स्टिमुलेट करेगा। अगर वो बच्चा खुश होता है, खुशी से गाने गा रहा है या कोई आर्ट वर्क कर रहा है तो जो एमिगडाला है या लिम्बिक सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करेगा। अगर बच्चा सोचने पे मजबूर हो रहा है कि हमारे खेल में इसके बाद क्या स्टेप होगा या किसी और बच्चे के साथ वार्तालाप कर रहा है और कोई नियम निकाल रहा है तो वो फिर प्रीफ्रंटल लोब्स देखेगा। और अगर लैंग्वेज के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो टेम्पोरल लोब्स शामिल हो जाएंगे। तो अलग अलग हिस्से हैं ब्रेन के जो स्टिमुलेट होते रहते हैं खेल के माध्यम से और नए कनेक्शन बनते हैं। डॉक्टर शर्मा, उम्र के हिसाब से खेल कैसे चेंज होता है? एक शिशु से लेकर 8 साल के बच्चे तक प्ले यानी कि खेल कैसे बदलता रहता है? जैसे ही बच्चा ग्रो करता है तो उसका जो कनेक्शन होता है आउटसाइड वर्ल्ड से भी वेरी होने लगता है। शुरू का कनेक्शन माता पिता के साथ होता है, ब्रदर सिस्टर के साथ में होता है, तो वो लिमिटेड लोगों के साथ वो डिफरेंट टाइप ऑफ वार्तालाप या गेम के रिलेटेड कम्युनिकेशन करता है जिसमें कि उसका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, अप्रेजल उसको प्रेज मिलता है और उसका एक सेल्फ एस्टीम होता है वो इम्प्रूव होता है। तो जैसे जैसे वो धीरे ग्रो होने लगता है तो उसकी जो क्षमता होती है जो अपने देखना चाहते हैं कि मेरी जो रीजनिंग है वो कैसा है या साइकोमोटर कोऑर्डिनेशन कैसा है, तो उस चीज़ों के लिए फिर वो प्लेग्राउंड बेस्ड एक्टिविटीज़ की तरफ मूव होने लग जाता है। हरप्रीत, अगर आपने अभी देखा होगा कि हमने अभी बच्चों से खेल के बारे में उनकी राय सुनी, माता पिता और केयर गिवर्स इन जानकारियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि बच्चों के लिए एक स्वस्थ माहौल बनाया जा सके? बच्चे के साथ खेलने के लिए सबसे पहले तो उन पर थोड़ा सा ध्यान जरूरी है कि बच्चा खेलना चाहता है। इतना अगर दे दिया तो उनके साथ हम घर में भी खेल सकते हैं और बाहर में भी खेल सकते हैं। बाहर खेलने के लिए क्या है कि बाहर लाइफ ज़्यादा है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ग्रास है, चींटी है, कॉकरोच है, सब कुछ है, तो स्विंग्स हैं, एमथिंग। बच्चे के लिए खेलना आसान है, आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। घर में आजकल कई बार हम घर को दरवाज़ा बंद कर दिया है, सिंगल फैमिली में रहते हैं, प्लास्टिक से भर दिया है, तो अगर घर में है तो थोड़ा बच्चे पे ध्यान ज़्यादा जाए। घर में एग्जांपल मैंने अपने घर में वुड पैनल में भी एक स्विंग लगा दिया था और हमारी बेटी 2-2 घंटे सिर्फ स्विंग करती रहती थी। तो अगर आप
फर्नीचर और चीज़ों पे कम ध्यान देके बच्चों के लिए थोड़ा और खेल लायक चीज़ें बना दे तो खेलना बच्चों के साथ बहुत ही आसान है, क्योंकि बच्चे एक्चुअली दिल से खेलना चाहते हैं। दीपाली, आपका जो प्लेटफॉर्म है माई टीनी टॉट, उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप बहुत टिप्स देते हो उस पर कि किस तरह बच्चों को एंगेज किया जा सकता है, उन्हें पेरेंट्स और बच्चे ताकि एक समय क्वालिटी टाइम भी स्पेंड सके और साथ साथ बच्चे सीखे भी कुछ। यस, हम सब लोग ना एक न्यूक्लियर सेटअप में हैं, तो हमारे लिए एक रूटीन और स्ट्रक्चर्ड प्ले इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि प्रिटेंड प्ले, फ्री प्ले इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड। जैसे हम लोग भी जब छोटे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, डॉल्स को करके टीचर हमें खेलना ही था। तो चाहे वो टीचर हो गया, या फिर वो किचन प्ले हो गया, या फिर आप एक सेंसरी बिन रख लो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि कोई भी एक्सपेंसिव टॉयज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, फैंसी सेटअप नहीं चाहिए बच्चों को सिर्फ चाहिए कि आप उनको फ्री टाइम दें। एंड प्लस हमारे जो सेंसरी बिन्स हैं उससे हमारे सारे स्किल्स डेवलप होते हैं। प्रिटेंड प्ले से हमारे लाइफ स्किल्स डेवलप होते हैं, हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें रोल प्ले करना है। डॉक्टर सहन, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्ले को हर एबिलिटी, कल्चर और आर्थिक बैकग्राउंड के बच्चों के लिए कैसे अडेप्ट किया जा सकता है ताकि हर बच्चा खेल का लाभ उठा सके? देखिए, जैसे अभी बता रही थी दीपाली कि इसके लिए हमें बहुत खेल के लिए बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। बड़े सिंपल चीज़ों से खेलने का जगह बनाया जा सकता है। ना कि अगर हम अपने घर को केवल फर्नीचर से और काम की चीज़ों से भर दें तो बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह बचता नहीं है। मेसी प्ले करने तो सबसे बड़ी बात है हर फैमिली के लिए, हर पेरेंट के लिए ये सोचना कि हम अपने बच्चों के खेल के लिए कहाँ से कैसे जगह बनाएंगे, मन में कैसे रखेंगे, समय कैसे बनाएंगे। ये अगर हम समझ पाएंगे तो हम जाहिर है कि हम वो काम करेंगे उनके साथ। डॉक्टर शर्मा, बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी काल्पनिक खेल खेले हैं, जैसे चाय बनाना या सुपर हीरो बनना। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के खेल बच्चों के दिमाग को किस तरह मजबूत करते हैं? काल्पनिक खेलों से एक तो बच्चों में एक रीजनिंग एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है, एक उस जो भी रीजनिंग होता है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका डेवलपमेंट होता है। और वो सारे एग्जीक्यूशन के लिए उनमें एक मोटर डेवलपमेंट की चीज़ों को मुझे कैसे अरेंज करना है, कैसे उसको आउटपुट की तरफ ले जाना है, उन चीज़ों पे असर पड़ता है। तो इससे ओवरऑल जो बच्चे का सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन होता है वो काफ़ी अच्छा बनता है यदि वो काल्पनिक खेलों में इन्वॉल्व होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एडवाइस है कि तकरीबन 120 मिनट से ज़्यादा हर बच्चों के एक दिन में खेलना चाहिए। पर कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि पूरा दिन हमने स्ट्रक्चर्ड कर दिया है उसका और उसके बाद उसका स्क्रीन यूज बढ़ गया है, तो कहाँ पे हमने उसको प्ले का स्पेस ही नहीं दिया। हमने पूरा लाइफ उसका जो डेली शेड्यूल का स्ट्रक्चर कर दिया कि उसमें बोर्डम और अकेलापन ज्यादा आ गया। तो उन चीजों को भी हमें मैनेज करना है, तो प्ले टाइम को एनकरेज करना होगा। हरप्रीत, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले की बात करें, रूल बेस्ड गेम्स बच्चों के दिमागी विकास में कैसे मदद करते हैं? माता पिता, केयर गिवर्स, इन खेलों को बच्चे की रोज़मर्रा की जो गतिविधियों में इनको कैसे शामिल किया जा सकता है ताकि उनका मानसिक जो विकास है वो बेहतर हो? आपने दो चीज़ें पूछी, एक कि वो कैसे रूल बेस्ड प्ले कैसे हेल्प करता है और उसको हम कैसे ज़िंदगी में जोड़ सकते हैं बच्चों की। तो आई थिंक हम कोई भी इमोशनल रेगुलेशन के साथ पैदा नहीं होता कोई भी बच्चा। जैसे कि बच्चा पैदा हुआ तो वो रोने लगता है तो उसको खाना मिलता है ना। वो जो रूल्स होते हैं वो हमेशा से होते हैं। अगर बच्चा खुद से भी खेल रहा था और गाड़ियाँ या टॉयज लगा रहा था, आपने उसको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो बच्चा कई बार गुस्सा होने लगता है कि अरे मैंने ऐसे लगाया था, आपने ऐसा क्यों कर दिया। उसके लिए वो वैसा होना बहुत ज़रूरी है, उसके दिमाग में एक रूल बना है। लेकिन जब हमारे रूल अप्लाई होते हैं आसपास के बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, तो हमारे बच्चे को उसका इस दुनिया में क्या रोल है, कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट है, वो समझ में आती है। So, हर तरीके से बच्चा इम्पैक्ट हो रहा है, सोशल, इमोशनल, वेरियस वेज। दीपाली, आप पहले एक टीचर थे, अब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं एज अ मदर, द रोल, व्हाट आप क्या कहेंगे, प्ले कितना ज़रूरी है और आपके अपने लाइफ में अपने बच्चों पे ये क्या इम्पैक्ट देखा है खेल का? एक चीज़ जो मैंने अपने एज अ टीचर, एज अ फॉर्मर टीचर एंड एज अ मदर जो मैंने देखा कि प्ले अगर आप फ्री प्ले रखते हैं बच्चों के साथ ना, तो उनके अंदर ना एक कैरेक्टर डेवलप होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट ऑन माई ओन, लेट मी जस्ट ट्राई। आपको ये बार बार उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी एक फ्री प्ले का एनवायरनमेंट दिया है, जहाँ पर अगर मिट्टी गिर रही है तो आपने ये क्यों गिरा दिया, खाना गिर गया तो आपने ये नहीं बोला अरे ये क्यों गिरा दिया, बिकॉज दैट्स हाउ दे लर्न।
सो उनके लिए काम सिर्फ एक है, खेलना। ठीक है, जैसे हमारा अपना अपना अलग अलग काम है, लाइक डॉक्टर इज हियर, यू आर हियर, वी ऑल आर वर्किंग इन आवर रेस्पेक्टिव फील्ड्स, उनका सिर्फ काम खेलना है, तो आप उनको प्लीज फ्रीली खेलने दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेल, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस बीच ndtv.com/बचपन बनाओ स्क्रीन कम खेल ज़्यादा की शपथ लें, ताकि मिलकर हम एक ऐसा समुदाय बना सके जो खेल को महत्व देता है और बचपन के जादू को संजोता है। रंग चढ़े खुद का ही खुद पे बच्चों को तू ऐसे बढ़ा, बचपन मना रे यारा बचपन मना। रोशन हो ये नन्हे दिए इन्हें तू रोज सजा, बचपन मना रे यारा बचपन मना। रंग चढ़े खुद का ही खुद पे बच्चों को तू ऐसे बढ़ा, बचपन मना रे यारा बचपन मना। रोशन हो ये नन्हे दिए इन्हें तू रोज सजा, बचपन मना रे यारा बचपन मना। I tell you, you can either only watch or go and play. What will you do? Watch, obviously. I can read books, I can watch iPad, but if I didn't have iPad, I could just read books and paint. If I didn't have painting, I could just read books. If I couldn't read books, I could just sleep. TV mode. Sometimes we paint with our hands, sometimes we paint with brushes. There's a game I play with my dad. So, supposing it's a bed. We play on a bed. He throws a ball. I have to jump because there's a stair to my bed. I jump on that and I leap to get the ball. I would like to go to my friend's house to play a few games with them. I play with my didi or I play with my mama, papa or my sister. With my dadi, I play some games that I just take out of my cupboard, and I also read a little bit of Hindi with my dadi. Yeah, sometimes when they're not playing down, they're at the home doing something, I just call them down. Why do you think parents are telling you कि बेटा एक ही घंटा खेलो फोन पे, उससे ज़्यादा नहीं? I don't know. I'm not exactly allowed to watch small screens for a long time. Think about it. Think. It's not because I'm already wearing specs, because I only wear specs because my eyes are getting rubbed by my hands. So, my eyes can't get spoiled because it strains your eyes. And what if one day they say no, you can't play on the phone? What will you do? Obviously a tantrum. Which kid won't do a tantrum if their mom and dad won't let them watch? You throw a tantrum. Yes. What if still they don't listen to you? Then I'll just steal their phones and watch. Ta-da. Build your own world, if I tell you. With your friends, with your animals, with whatever your imagination can tell you. What would you do on that day? I would call friends over and play and make things. I would want everything to be really magical. Happy birthday to you. Done. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बचपन बनाओ। बच्चों के पहले 3000 दिन यानी पैदाइश से 8 साल के बच्चे और उनकी अद्भुत खेल की दुनिया का जश्न। पर खेल सिर्फ खेल नहीं है। खेल खेल में बच्चे ऐसे सबक सीखते हैं जो ज़िंदगी भर उनका साथ देते हैं। हम सभी की बुनियाद इन 8 सालों में ही रखी गई है। दीपाली, अभी हमने सुना कि अगर बच्चों के पास स्क्रीन नहीं हो तो फिर वो क्या करेंगे, लेकिन ये डिजिटल शिक्षा का ज़माना है, तो किस तरह बच्चे वो बैलेंस मेंटेन कर सके कि वो खेल भी सके और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिजिटल पे भी मज़े कर लें?
आपका बच्चा ना बहुत बार ना ये भी फील कर सकता है अगर वो स्क्रीन फ्री है एंड यू नो वो एक ऐसे वर्ल्ड में जा रहा है जहाँ पर लोगों के पास स्क्रीन है, दे आर प्लेइंग, तो एक पॉइंट पे उसको ये फील होगा कि यार आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम, ये सारे बच्चों से मैं डिफरेंट हूँ क्योंकि मेरे तो पेरेंट्स मेरे को स्क्रीन भी नहीं दे रहे हैं। सो एक बच्चे के साथ ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको स्क्रीन भी दीजिए लेकिन आप उसको रेगुलेट करिए फर्स्टली, और सेकेंडली यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप स्क्रीन लेके, लैपटॉप लेके, आईपैड लेके पूरे टाइम बैठे हुए हैं एंड यू नो आप अपने बच्चे को ये बोल रहे हैं कि आप बुक रीड करो, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। डॉक्टर शर्मा, हम जानते हैं कि स्क्रीन बच्चों पर असर डालता है, लेकिन ये डिजिटल युग है, माता पिता और केयर गिवर स्क्रीन कम खेल ज़्यादा को बढ़ावा देने के लिए कौन से आसान और मज़ेदार तरीके हैं, अगर आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं? मेरे हिसाब से जो पहला स्ट्रेटेजी अक्सर वर्क करता है, जिसे हम अक्सर रिकमेंड भी करते हैं, उसे हम डिजिटल फास्टिंग कहते हैं, कि सारी फैमिलीज को ट्राई करना चाहिए कि कुछ टाइम बिना स्क्रीन के बिताएं। उस टाइम में या तो वो कम्युनिकेशन, बातचीत हो सकती है, कि वो डिनर टाइम, फूड टाइम, या कुछ और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये डिजिटल फास्टिंग जैसे वो अपनी जिंदगी में लाते हैं तो बच्चों को पता चलता है कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिसमें स्क्रीन यूज की जरूरत नहीं है। तो ये लर्निंग बच्चों में होनी चाहिए फ्रॉम अ वेरी अर्ली पीरियड। दूसरा चीज जो अक्सर पेरेंट्स को बच्चों को डेमोस्ट्रेट करनी है, जैसे अक्सर देखा गया है, चाहे जैसे 6, 7 ईयर, 8 ईयर्स तक का बच्चा भी एक फिनोमेना से सफर होता है, जिसे हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग। उनको लगता है कि मुझे, या पेरेंट्स में भी वो होता है कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। पेरेंट्स भी लास्ट बैड टाइम तक, जब तक आंखें बंद ना हो जाए, वो स्क्रॉल करते ही रहते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट को तो कम करना है और जॉय ऑफ मिसिंग आउट को प्रमोट करना है, कि जिंदगी में सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, जिंदगी में बहुत सारी और चीजें भी हैं जिससे खुशी मिलती है, जिससे कम्युनिकेशन मिलता है, जिससे सोशल कनेक्शन बढ़ता है। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा। हरप्रीत, अगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पेरेंट्स और शिक्षक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और खेल के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं? जब से स्कूल आए तब से स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आई। क्यों आई? इसलिए आई ताकि बच्चों को हम कुछ ऐसा पढ़ा सकें जो उस उम्र में वो नहीं सीखना चाहते या खुद से नहीं सीखेंगे। पहले 3000 डेज में बच्चे के, उनका जो पहले 8 साल है, उनका कंसंट्रेशन लेवल, अटेंशन स्पैन कम होता है। ये हर पेरेंट को समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 6, 7, 8 साल का बच्चा 10 से 12 मिनट तक बैठ के कंसंट्रेट कर सकता है। ये उसकी एबिलिटी है। धीरे धीरे वो बढ़ेगी, 2, 3, 4 घंटा काम कर पाएगा, लेकिन अभी के लिए उसकी ये एबिलिटी है। तो अगर हम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करना भी चाहते हैं तो 30 मिनट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमें दिन में, और अगर करनी है तो प्यार से करें, क्वालिटी टाइम। आई थिंक वही हरप्रीत आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। डॉक्टर सर, हमने खेल के ज़रिए ब्रेन डेवलपमेंट की बात की, लेकिन अगर मैं आपसे इमोशनल क्वेश्चन के बारे में बात करूं, बच्चे जो आगे जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है, चाहे एक दूसरे के एम्पैथी हो, रिस्पेक्ट हो, प्ले उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है? जी, तो देखिए, शुरुआत से ही जब बच्चे खेलने लगते हैं तो उसके साथ साथ अलग अलग किस्म के जज्बात और फीलिंग्स उभरने लगते हैं, है ना। कोई बच्चा खेल के बहुत खुश होता है, उनमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है, कौतूहल जगता है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। जब बच्चा किसी गेम में हार जाता है या कर नहीं पाता है कुछ काम, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है, या रो पड़ते हैं। तो अलग अलग टाइप के इमोशंस जगते हैं खेल के माध्यम से। और बच्चे सबसे पहले सेल्फ अवेयर होते हैं, उनमें ये जागरूकता आती है कि हाँ, मेरे में ये सब फीलिंग्स हैं। अगर उसके साथ साथ कोई उसको लेबल करना भी सिखाएं तो और बेहतर हो जाते हैं सेल्फ अवेयरनेस में, वही आगे जाके लाइफ और आगे जाके लाइफ में यही मदद करती है बच्चों को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खेल बच्चों की जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिससे उनका हर तरह से विकास होता है। इसके ज़रिए वे ज़रूरी कौशल, अच्छे मूल्य और आदतें सीखते हैं जो उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में मदद करते हैं, और वे खुशहाल, स्वस्थ और कामयाब जीवन के लिए तैयार होते हैं। बचपन मनाओ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंग चढ़े खुद का ही खुद पे, बच्चों को तू ऐसे बढ़ा। बचपन मना रे
बचपन मना। रोशन हो ये नन्हे दिए, इन्हें तू रोज सजा। बचपन मना रे यारा, बचपन मना।